Hello friends, welcome to my channel Prasad Joshi Astro Universe. Today we are going to talk about how the month of July 22 is going to pan out for the Cancer Ascendant people. Let us first start with how things are going to pan out at the workplace. Rahu and Mars conjunction is taking place in the 10th house, so this whole month of July is going to produce a lot of challenges at the workplace for Cancer Ascendant people. Mars is aggression, speed, and Rahu is expansion. So you will experience all kinds of conflicts and arguments at the workplace. So the best bet would be to avoid getting into fights and arguments at the work sphere. Within the month, best time will be between 21st and 22nd of July, 3 days. Let us now look at the seventh house, which is for marriage and businesses. Saturn is going to crawl back to the seventh house, and in case of Cancer ascendant people, Saturn passing through here would mean you will take your relationship with your spouse and business partner to be more of a duty rather than the actual relationship. So as a result, fun quotient in your marriage is going to get sucked out in the month of July. If you are unmarried, then Jupiter passing through the ninth house will produce a chance in this transit because it will aspect your first house through the fifth aspect. It is not a very great time as far as marriage or your relationship with your business partner is concerned. As I said earlier, Jupiter passing through the ninth house will aspect your own house, which is your self or personality, and the house of kids. So this is going to be a very high probability that there will be an increment in your family during this time. You may get kids yourself, and if you're older in age, then you may see grandkids getting added into your family. Sun is passing through your 12th house, and it also happens to be the owner of your family and self earned wealth. So, the second house lord passing through the 12th house would mean you will spend your money in foreign travel, and the probability is that you will travel to this foreign country along with your family in the month of July. This combination also means that you are going to earn from some kind of an unexpected source in the month of July. And as I said earlier, foreign travel with family is also on the card. This can happen in the first 15 days of July because after 15th of July, Sun will move to the first house. So if we talk specifically about the self-earned wealth or finance, then 3rd, 4th and 5th July will be the best time for you as far as earning money is concerned. This transition of Sun from the 12th to the first house after 15th of July. This will cause your ego to take a boost in the later half of the month. We will also talk about the fifth house lord. Fifth house lord Mars is sitting in its own house in the 10th house, and Mars is a highly benefic planet for Cancer ascendant because it owns one of the trine houses, fifth, and a quadrant, which is 10th. Mars is going to aspect its own house during the month of July. It is going to cast its eighth aspect on the fifth house. Along with this, Jupiter is also going to aspect the fifth house through its ninth aspect, and Saturn is going to cast its 10th aspect. So, people who are students, this is going to be an extremely good month for students. People who are associated with speculation, July will prove to be an excellent month because they are getting three aspects: Mars aspecting its own sign, Jupiter casting its benefic influence on the fifth house, and Saturn through its 10th house. But Saturn's aspect would also mean that they will have to work very, very hard before they generate those gains. Within the month, 10th and 11th of July would be the best time to pursue any kind of an activities that are related to education or speculation. Ketu is positioned in the fourth house for Cancer ascendant people, so these people will start to feel detached from home. It is the signification of Ketu to formulate any kind of a detachment. Fourth house lord Venus is passing through the 11th house, which is again eighth from the fourth house. So detachment from home environment will continue, but within the month 8th to 9th July is the best time that you can spend at home. Ideal way to deal with this Ketu is to write down what all is happening at home in a diary. Maintain it regularly and also try to write how you want your home environment to be in the future.
you will see that whatever you are writing is going to subsequently enter into your subconscious, and those things will turn out to be true and they will become your reality in your future. There are also certain days when a person needs to be careful in the month of July. These days are 10th to 11th of July, 12th to 13th of July, 16th, 17th July, and 25th and 26th of July. So in total 8 days, 10th, 11th, 12th, 13th, 16th, 17th, and 25th and 26th of July are the days when Cancer ascendant people needs to be very cautious. Overall, this is a satisfactory month for Cancer ascendant people, except the challenges that these people are going to face at the workplace. So if you have liked my video, please do subscribe to my channel and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल प्रसाद जोशी एस्ट्रो यूनिवर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्क लग्न वालों के लिए जुलाई 2022 का महीना कैसे रहेगा। देखिए, सबसे पहले हम कर्म स्थान की बात करते हैं। कर्म स्थान पे राहु मंगल का अंगारक योग बन रहा है। राहु व्यक्ति में किसी भी तरह की छुपी लालसा को दिखाता है और वो एक्सपेंशन को दिखाता है, बड़ा करने को, और मंगल व्यक्ति का अग्रेशन दिखाता है और उसकी गति दिखाता है। तो ये दोनों की युति जब दशम भाव में बनेगी तो इसका मतलब है कार्यस्थल पे आपके झगड़े होंगे, लोगों के साथ आपके वाद विवाद होंगे और ये पूरा महीना चलेगा। इस महीने में सबसे बेहतरीन दिन कार्यस्थल के लिए 20, 21, 22 जुलाई है, लेकिन ये तभी संभव है जब आप लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट्स टालें अपने वर्क स्पीयर पे। अभी बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस सप्तम भाव से देखा जाता है। शनि सप्तम और अष्टम दोनों भावों का स्वामी है और अभी वक्री होके वापस से सप्तम भाव की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे बिजनेसेस को ग्रोथ नहीं मिलेगी, उनको रूटीन मेंटेन करके रखना पड़ेगा जुलाई के महीने में। शनि चूंकि वापस से आएगा दशम भाव में, तो शादी के लिहाज से भी ये कुछ खास अच्छा नहीं कहा जाएगा। शनि की उपस्थिति यहाँ पे चीजों को बहुत बोरिंग बना देगी। जितने भी व्यक्तियों की जन्म कुंडली में सप्तम भाव में शनि लोकेटेड होता है, तो ऐसे लोगों के लिए शादी एक ड्यूटी बन जाता है। इन लोगों को कुछ मजा नहीं आता शादी में, एक ड्यूटी निभानी है, उस लिहाज से ये अपनी शादियों को लेते हैं। तो शनि यहाँ से जब गुजरेगा तो आपके आपकी वाइफ के और हस्बैंड के और आपके बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशनशिप्स को बहुत बोरिंग करेगा। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो गुरु यहाँ 9वें भाव से गुजर रहा है, तो वो आपके लग्न स्थान को देख के शादी का चांसेस तो प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन आपको खुद के महादशा अंतरदशा स्वामी को भी देखना पड़ेगा। ट्रांजिट में तो हरी झंडी मिल रही है, अगर महादशा अंतरदशा स्वामी भी हरी झंडी दिखा रहे हो तो इस महीने में भी आपके शादी के योग बन सकते हैं। गुरु की 9वें भाव से गुजरते हुए एक दृष्टि आपके प्रथम भाव पे यानी खुद पे पड़ेगी और 5वें भाव पे पड़ेगी, जिससे कि आपके बच्चे देखे जाते हैं। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है इस चीज की कि जब तक गुरु यहाँ पे बैठा हुआ है अप्रैल 2023 तक, तो अगर आपकी शादी अभी अभी हुई है या आप 20s 30s में हैं तो आपके खुद के संतान हो सकती है इस समय में। अगर आप बड़ी उम्र के हैं तो आपके पोते भी इस समय में पैदा हो सकते हैं, पोते या पोतियां, डिपेंडिंग ऑन कि आप लाइफ स्टेज में कहाँ पर हैं। सूर्य 12वें भाव से गुजर रहा है और यहाँ पे 12वें भाव के स्वामी के साथ ही बैठा हुआ है। सूर्य द्वितीयेश होता है कर्क लग्न वालों के लिए, और द्वितीय स्थान से आप अपने परिवार, खाना पीना और सेल्फ अर्न्ड वेल्थ को देखते हैं। तो यहाँ पे ये चीज दिखाता है कि आप अपने धन को खर्च करेंगे किसी फॉरेन ट्रिप में बाहर घूमने के लिए, जहां आप अपने परिवार के साथ जाएंगे, या आप कोई फॉरेन की चीजें ट्राई कर सकते हैं। इवन खाने में भी इस महीने के दौरान कोई एग्जॉटिक टाइप का फूड आप खा सकते हैं। और एक चीज आपको ये भी दिखाता है कि किसी अनएक्सपेक्टेड सोर्सेस से भी आपको पैसा मिल सकता है जुलाई के महीनों में। पैसे के लिहाज से देखेंगे तो 3, 4 और 5 जुलाई सबसे अच्छे दिन साबित होंगे जुलाई में पैसा कमाने के लिहाज से। 15 जुलाई तक के अंदर ही अगर आपका ट्रैवल होना है तो वो होगा। उसके बाद सन यहाँ से निकल के प्रथम भाव में आ जाएगा। सूर्य जैसे ही 16 जुलाई को प्रथम भाव में आएगा तो पूरे महीने में व्यक्ति की ईगो बूस्ट करेगा, यानी आपको बड़ा गर्वित महसूस कराएगा अपने बारे में। ये तभी हो सकता है जब आप कोई बहुत बड़ा कार्य कर लें इस महीने के दौरान। अभी पंचम भाव की बात करते हैं। कर्क लग्न वालों के लिए मंगल योग कारक ग्रह होता है, क्योंकि वो एक केंद्र एक त्रिकोण का मालिक होता है। पंचम और दशम भाव का स्वामी मंगल होता है और ये बहुत बेहतरीन फल देता है कर्क लग्न वालों के लिए। यहाँ पर मंगल अपने ही भाव को देख रहा है 8वीं दृष्टि से दशम भाव में बैठ के। जितने भी लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेहतरीन समय है कि गुरु भी अपनी 9वीं दृष्टि से यहाँ देखेगा और शनि भी 10वीं दृष्टि से देखेगा।
तो ये पांचवें भाव से होने वाली चीजें की संभावना बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि तीन तीन बड़े ग्रह उसको देख रहे हैं। अगर आप शेयर बाजार से संबंधित रखते हैं तो 10 और 11 जुलाई 2 दिन ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। कुल मिला के पांचवें भाव से रिलेटेड आप जितनी भी चीजें देखते हैं, स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन समय है। लोग स्टॉक मार्केट से भी पैसा कमा सकते हैं, खास करके 10 और 11 जुलाई को। और रोमांस में भी आपको सफलता मिलेगी जुलाई के महीने में। अभी केतु की बात करते हैं। केतु यहाँ चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, व्यक्ति को घर के एनवायरनमेंट से विमुख कर रहा है। केतु का काम है काट देना। तो जब भी केतु चौथे भाव से निकलता है तो व्यक्ति में असंतुष्टि आती है, घर के माहौल को लेके, घर के वातावरण को लेके, इवन परिवार के लोगों के प्रति भी। अभी जो चतुर्थेश है वो भी 4वें भाव से निकल रहा है, जो कि यहाँ से अष्टम भाव पड़ता है। ये समय में व्यक्ति कटा हुआ महसूस करेगा घर से। मिथिन अगर आप जुलाई में देखोगे तो 8 और 9 जुलाई 2 दिन ऐसे हैं जब उसको शायद घर में थोड़ा बहुत सुख मिल सकेगा। लेकिन ऐसे केतु को डील करने का एक ही तरीका होता है कि आप लिखना शुरू करें, सारा कुछ अपने लिए एक डायरी बना के रखें, रोज रोज उसमें लिखिए आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप अपने घर के माहौल को कैसा होते देखना चाहते हैं। जो भी आप लिखेंगे वो आपके अंतर मन में उतर जाएगा और आगे जाके वही चीजें आपको होती हुई दिखेंगी। तो केतु चाहता है कि आप लिखें और अच्छी पॉजिटिव बातें लिखें, तो जो भी आप लिखेंगे वही चीजें आपको आगे रियलिटी में ट्रांसलेट होते हुए दिखेंगी। कुछ ऐसे दिन भी हैं जुलाई में जब कर्क लग्न वालों को सावधान रहना चाहिए। ये दिन है 10 से 11 जुलाई। यहाँ पे तीन तीन प्लैनेट्स का एस्पेक्ट पड़ रहा है यहाँ पर। 12 और 13 जुलाई, 16 और 17 जुलाई और 25 और 26 जुलाई। तो ये दिन है जब व्यक्ति को सावधान रहना पड़ेगा जुलाई के महीने में। कुल मिला के ये संतोषजनक महीना रहेगा कर्क लग्न वालों के लिए। खाली आप कार्यस्थल को छोड़ दीजिए, अगर आप कार्यस्थल पे वाद विवाद टाल सकते हैं तो वहां पर भी आपके लिए चीजें अच्छी रहेंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।